CAA के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल या उसका समर्थन कर रहे लोगों के खिलाफ जबरन हलफिया बयान इकट्ठा किए जा रहे हैं। इससे जांच की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। इससे हमारे भीतर बहुत चिंता हुई और हमने ये सोचा कि यह बात सार्वजनिक तौर पर साझा की जानी चाहिए। और जिस प्रकार फरवरी में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जिस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, 13 हिंदू और 40 मुसलमान, सैकड़ों लोगों के घर बर्बाद हो गए और उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, वो नष्ट कर दिए गए। कई मस्जिदें बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई। इस हिंसा के बाद इस हिंसा की जांच जिस तरह होनी थी वैसी न करके और एक बिल्कुल उल्टी दिशा में जांच चल रही है, यह देखकर भी हमें बहुत चिंता है। हिंसा हुई थी, जाहिर है हिंसा के पीछे कुछ लोग रहे होंगे, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि इस हिंसा की जांच की जगह CAA, NRC, NPR के खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ था, उस प्रतिरोध को ही अपराध ठहराकर उसकी जांच की जा रही है कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे शामिल थे, किस तरह से शामिल थे, वगैरह वगैरह, और उसी को अपराध बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वरूप आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। श्री हर्ष मंदिर, सुश्री कंवलप्रीत कौर, डॉक्टर उमर खालिद और प्रोफेसर योगेंद्र यादव ये अपनी बात रखेंगे। मैं श्री हर्ष मंदिर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। Many testimonies of victim survivors, and I've met so many of them about the role of the police enabling, encouraging, actually indulging in hate violence. This was the conspiracy behind the Delhi violence, an effort to punish and crush the largest non-violent protest in independent India. The police story is, of course, quite the opposite, that the protests were the conspiracy and that its non-violence was only a facade. In pursuit of this story, every day for the last several weeks, we find that the special branch, which normally investigates grave crimes like terror, is busy summoning mostly young people, sometimes seniors, grilling them, intimidating them, and sometimes, as Umar has testified, making them create false evidence. Large numbers of young people are today languishing in prison for months without bail in the name of this so-called conspiracy. We are gathered here today, above all, in the defense and solidarity with these young people. Yes, they and we did participate in the non-violent movement against the CA, NRC, and NPR, and we are proud to have done so. During the protests, some WhatsApp groups were made. Now, every word exchanged in these groups are being examined with a defective microscope by the police, their meaning and their context deliberately and mischievously misinterpreted, the truth ripped into shreds and reimagined to create the mythology of a conspiracy of hate, violence, and insurrection by the protesters. There were significantly other WhatsApp groups that were indeed actively and openly calling for violence on these dates. None of these are being subjected to any investigation of a conspiracy. Our protests and those of the young people who are now in our prisons were to uphold the Constitution and the idea of an inclusive, humane country of equal citizenship, which is the proudest legacy of our freedom struggle. The young people and we protested because we love our country dearly, and we seek to make this country better for all its citizens of every religion, caste, class, and gender by holding the state accountable to stand by its duties to the Constitution. It is a travesty to describe this as a crime against the nation. The purpose of the state in doing so is transparent. It is to destroy the basic guarantees and freedoms of our Constitution. The effort of the Indian state, facilitated by the Delhi police, is to crush our voices, our dissent, our struggles to uphold the Constitution. And so in the end, we declare here and hope that those holding highest office in this country hear us loud and clear, that the government will never succeed in silencing us. It will never succeed in taking away from us the dream we inherited from our freedom struggle of together building a country one day
which is just, which is equal, and which is kind. दिल्ली पुलिस का ये ख्याल है कि फरवरी में जो हिंसा हुई उसके पीछे एक साजिश थी। हम इससे बिल्कुल सहमत हैं। साजिश थी, लेकिन वो उस साजिश से बिल्कुल अलग थी जिसकी बात दिल्ली पुलिस कर रही है और जिसका प्रचार किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई भी सांप्रदायिक हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं होती है। 3 ज़रूरतें होती हैं। पहले हिंसा नफ़रत पैदा की जाए। दिल्ली में हमने ये देखा कि दिल्ली चुनाव के दौरान नफ़रत का एक माहौल बनाया गया और वह भारतीय जनता पार्टी और शासक दल के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उन लोगों के खिलाफ नफ़रत पैदा करके किया गया जो सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध करते हुए आंदोलन कर रहे थे। दूसरा तत्व यह होता है कि जो हिंसा हो उसके लिए सर्वसामान इकट्ठा किया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि राज्य इसमें किस प्रकार की भूमिका अदा करता है और पुलिस। कोई भी इस प्रकार की हिंसा कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकती अगर सरकार न इस हिंसा में पुलिस की जो भागीदारी थी वो बहुत ही स्पष्ट थी। फैजान की जिस प्रकार यातना दी गई वह रिकॉर्ड पर है। उसे जिस तरह मार मार के राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उसकी मृत्यु हुई वो बहुत स्पष्ट है। बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, बहुत सारे बयान हैं जो पुलिस की भूमिका के बारे में हैं। यह एक षड्यंत्र था दिल्ली हिंसा के खिलाफ, यानी सीएए के खिलाफ प्रतिरोध करने वालों के विरुद्ध नफरत पैदा करना, उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करना जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। पुलिस की जो कहानी है वो यह है कि यह प्रतिरोध एक षड्यंत्र था और अहिंसा सिर्फ धोखे की टट्टी थी। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए रोजाना स्पेशल सेल जो बनाया ही गया था आतंक जैसे महत्वपूर्ण बहुत ही गंभीर अपराध की जांच करने के लिए रोजाना ही लोगों को बुला रहा है, कई वरिष्ठ लोगों को बुला रहा है, कई लोगों को धमकी दी जा रही है। और जैसा हमने शुरू में कहा था कि उमर खालिद ने जो कहा है कि कई लोगों से जबरन बयान लिए जा रहे हैं कुछ लोगों के खिलाफ। बड़ी संख्या में नौजवान जेल में हैं जिन्हें जमानत भी नहीं मिली है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन नौजवानों के साथ एकजुटता दिखलाने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो अहिंसक आंदोलन था हम उसमें अपने अपने ढंग से शामिल हुए थे और हमें इसका फ़ख्र है कि हम उसमें शामिल हुए थे। हाँ, इन आंदोलनों का समर्थन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी थे जिनको पुलिस षड्यंत्रकारी समूहों के रूप में दिखलाना चाह रही है और ये बहुत विचित्र है और ये बहुत गंभीर बात है। ये जितने भी विरोध प्रदर्शन थे हमारे विरोध प्रदर्शन और जो नौजवान पुलिस की हिरासत में हैं वह संविधान की रक्षा के लिए थे। वह एक समावेशी भारत के विचार और एक मानवीय भारत के विचार जो कि समान नागरिकता का अधिकार करता, यह जो एक गर्व करने वाली हमारी विरासत है इसकी रक्षा के लिए थे। ये जो नौजवान हैं और हम सारे लोग, हमने प्रतिरोध इसलिए किया कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इससे प्रेम करते हैं और हम इसके बराबरी के ख्याल को रखना चाहते हैं जिसके बल पर हम दुनिया की बिरादरी में सर ऊंचा करके रह सकें। अभी जो कुछ भी हो रहा है वह एक षड्यंत्र है जो हमारी आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है, विरोध को दबाने के लिए किया जा रहा है और जो संघर्ष संविधान को ऊपर रखने का संघर्ष था उसको कुचल देने के लिए किया जा रहा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इस प्रयास में सरकार और उसकी एजेंसियां सफल नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया हर्ष, और मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहता हूं कंवलप्रीत को। सुश्री कंवलप्रीत, आप कृपया अपनी बात कहें। It was in the month of March, on 7th and 8th March, that first time the news reports came in the ANI and Rajasthan Patrika and other media organizations that first quoted RSS accusing ISA along with other student organizations of being the key conspirators in the Northeast Delhi riots. And it was on 11th March that the group of RSS-backed persons led by Monica Arora submitted their so-called fact-finding report on Delhi riots to the Home Minister. And that report targeted
the anti-CA protesters and other students groups. Many of the people in those students group are currently in jail. And the Delhi police on 25th April claimed that these students group, including Aisa, Pinjra Tod and other groups, were involved in the conspiracy behind the violence. So first, I just want to point out that the narrative was already set. The chronology was already set in the month of March, and it was later in the month of April that the Delhi police started retreating whatever was published beforehand by the RSS. And I would also like to point out that the impunity that's being granted to the supporters of the ruling party who made hate speeches, who incited violence, seems to be a repeat of the impunity that we all saw decades earlier in the 1984 anti-Sikh genocide that happened in Delhi, in which many of our even elders were the victims. But today, however, this time we see that the Delhi police seems to have gone a step ahead, and while providing immunity to the netas, it has started targeting the students and the activists who have been critical of the government. I would also like to point out very clearly that it was the students, especially the young women, who were the main pillars of the entire anti-CA movement. And we, the young women, were actually highlighting the fact that 70% of those who were left out in the Assam NRC and those and the women were actually pointing out that the 70% of those who were left out in Assam NRC were the women, were the people from the poor communities, and they were the hard hit. And it was the students all through the movement who were asserting repeatedly about harmony, who were talking about unity, who were even facing the bullets in Jamia, and they kept on repeating peace and love, while it was the BJP leaders who were clearly inciting violence, who were clearly giving the hate speeches. And I would also like to point out the bail order that the High Court has given in the case of Devangana, which clearly notes that the police has failed to provide any evidence. There is no evidence which can show that these people, our friends who are right now in jail, had incited violence at any point. Rather, it clearly, on the other hand, it is completely clear that all through the movement, it was the students who kept on saying that the movement is to save the constitution of this country. The movement is in defense of all those people who love. The movement is in defense of harmony. And even today, when we see that students are being forced to give exams in the pandemic, and student movement is also exposing other issues of be it recruitment scams or unemployment, this whole narrative that's being set by the government in which students are being jailed is being done to just show that the students are actually the villain in the whole conspiracy. And they have been put in jails, they have been silenced. And I would not take much time. I just want to say in this through this press conference that however hard they may try, however they may try to scare us, they may try to silence us, I just want to tell my fellow students that let's remain united and refuse to be scared or silenced. Let's keep speaking up for the rights of the poor, of the marginalized, of the minorities, and we stand with our friends and the activists who have been jailed, and we will continue to speak in defense of truth, in defense of our constitution, and in defense of love and harmony. Thank you. बहुत शुक्रिया कंवलप्रीत ने जो बात कही बहुत संक्षेप में वो यह है कि 7-8 मार्च को ANI राजस्थान पत्रिका और कुछ दूसरे मीडिया संगठनों में RSS के स्रोत को उद्धृत किया गया और आयशा पर यह आरोप लगाया गया कि वह दूसरे संगठनों के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा के षड्यंत्रकारियों में था। 11 मार्च को RSS के समर्थक एक समूह ने, जिसका नेतृत्व मोनिका अरोड़ा कर रही थी, उन्होंने तथाकथित फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा की गृह मंत्री को, और इस रिपोर्ट में भी आरोप लगाया गया कि आयशा, ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे छात्र संगठन इस हिंसा के साजिश करता थे, उन पर निशाना साधा गया। 22 मार्च को आयशा ने राजस्थान पत्रिका को एक पत्र भेजा जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया, जिसमें इन आरोपों की भर्त्सना की गई, निंदा की गई और इनसे इनकार किया गया। दिल्ली पुलिस ने 25 अप्रैल को यह दावा किया कि
आइसा और दूसरे छात्र संगठनों को जो निशाना बनाया जा रहा है वो बहुत एक रिग्रेस और पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन और जो सबूत उनके पास हैं उनके आधार पर किया जा रहा है। लेकिन हमारा आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस एक दी गई कहानी, एक दी गई स्क्रिप्ट पर काम कर रही है और ये पहले ही मोनिका अरोड़ा और दूसरे लोगों के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट केस से बहुत साफ जाहिर है। हम ये कहना चाहते हैं कि छात्र, नौजवान, खासकर नौजवान औरतें इस आंदोलन के स्तंभ थी और इन नौजवान औरतों ने ये साबित किया कि एनआरसी, असम में जो एनआरसी की प्रक्रिया चली उसमें 70% जो लोग छूट गए वे गरीब समुदायों के लोग थे। इसलिए कागज दिखलाने की जो बात हो रही थी और नागरिकता एनआरसी की जो पूरी प्रक्रिया थी वह दरअसल औरतों और गरीबों को निशाना बना रही थी। छात्रों की जो इसमें भागीदारी हुई वो एकता और समन्वय, दोस्ती, इस पर बार बार जोर दे रही थी। आपको पता है कि जामिया में कितनी हिंसा हुई और कितनी नफरत फैलाई गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा। जैसा कि हाई कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है देवांगना को लेकर वो बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि देवांगना के जो भाषण थे वे शांति की बात कर रहे हैं, हिंसा की नहीं। इसका मतलब यह है कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो कितना बेबुनियाद है छात्रों के खिलाफ, इसको सबको देखना चाहिए। आज छात्रों को इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान इम्तिहान देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम सारे लोग अभी बेरोजगारी और नौकरी मिलने में जो जितने घोटाले हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। सरकार हमें बांटना चाहती है और इसलिए ये अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है छात्रों को खलनायक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि जिस छात्र पर भी कभी दमन हुआ है, जिसको भी जेल में डाला गया है, वह शांति और मोहब्बत के लिए काम कर रहा था। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वे हमें डराना चाहते हैं, हमें खामोश करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने मित्र छात्रों को यह कहना चाहती हूँ कि हमें एकजुट रहना चाहिए और हमें डरने से इनकार कर देना चाहिए और खामोश रहने से भी इनकार कर देना चाहिए। हम गरीब लोगों के हक के लिए, जो असुरक्षित हैं उनके हक के लिए, जो हाशिए पर ढकेल दिए गए लोग हैं उनके हक के लिए काम कर रहे हैं और यह काम जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया कमलप्रीत, और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर उमर खालिद से कि वे अपनी बात कहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी, क्योंकि मेरी पिछली वक्ता ने बात करी कि किस तरीके से इस स्क्रिप्ट की जिस पे दिल्ली पुलिस अपना सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो पहले से लिख दी गई है और उसकी भी एक क्रोनोलॉजी है। मैंने सोचा नहीं था मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि कवलप्रीत ने ये बात लेकर आए हैं तो ये क्रोनोलॉजी 7 मार्च से भी पहले की क्रोनोलॉजी है। मुझे याद है 2 या 3 मार्च को बीजेपी आईटी सेल के जो चीफ हैं अमित मालविया, उन्होंने मेरा एक वीडियो, जो मैंने एक स्पीच दिया था अमरावती में जो तकरीबन 17 से 18 मिनट की स्पीच है, उस वीडियो में से 30-40 सेकंड उठा के उन्होंने अब ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताना चाहा था कि मैं लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आएंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। वो 17 मिनट का स्पीच था। उन्होंने 30-40 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप वायरल किया और पूरे दिन उसको उनकी जो सोशल मीडिया में आईटी सेल है उसने उसको वायरल करने की कोशिश करी। उनका ट्वीट करने के तकरीबन 1 घंटे बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर, सारे चैनलों ने डिबेट किया, लेकिन किसी ने वो 17 मिनट की पूरी स्पीच दिखाने की जरूरी नहीं समझा। अगर उसके वो 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद की बात करते तो वो हिंसा तो दूर की बात, बल्कि मेरा पूरा का पूरा भाषण इस बात की बात कर रहा था कि हम किसी हाल में कभी हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे। इस आंदोलन में हमारे सिर्फ 2 ही हथियार हैं जो गांधी जी ने हमको दिए थे, अहिंसा और सत्याग्रह। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये 3 मार्च की बात है। 3 मार्च 4 मार्च अमित मालविया के ट्वीट करने के बाद उनके आईटी सेल ने और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो एक तबका है जो सरकार के साथ खड़ा रहता है, उसने इसमें बहुत चर्चा करी और ये बोला कि ये दंगे का षड्यंत्र यही वो 10-20 सेकंड है स्पीच के जो आपने एडिट करके उस दिन ट्वीट किया था, उसको 3-4 मार्च को चलाया। जिस एफआईआर के ऊपर आज ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो एफआईआर 6 मार्च को फाइल हुई थी। मतलब ट्वीट पहले आया, स्क्रिप्ट पहले आई और उसके बाद वही चीज एफआईआर में, स्पेशल सेल में या क्राइम ब्रांच में जहां भी एफआईआर हुई थी दिल्ली पुलिस को,
एक गोपनीय इन्फॉर्मर, सीक्रेट इन्फॉर्मर के इंफॉर्मेशन के आधार पे वो एफआईआर फाइल करी गई। तो मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कौन थे? ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कहीं अमित मालविया ही तो नहीं थे? ये सीक्रेट इन्फॉर्मर कहीं बीजेपी आईटी सेल के लोग ही तो नहीं थे? क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो 6 मार्च को दिल्ली पुलिस के पास आई थी, वो 3 मार्च को बीजेपी का आईटी सेल और मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से ही चला रहा था। तो क्रोनोलॉजी की बात होती है, और क्रोनोलॉजी की बात हमारे गृह मंत्री करते थे एनआरसी सीए से पहले। एक क्रोनोलॉजी, जैसे कवलप्रीत ने भी बोला, एक क्रोनोलॉजी इस पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन की भी क्रोनोलॉजी है, जहां पॉलिटिकल मास्टर्स इस बात को पहले बोल दिए। इस पे संसद में बाकायदा बात हुई जब इन्वेस्टिगेशन ढंग से शुरू भी नहीं हुआ था, जहां कुछ नाम पहले से ले लिए गए और बोला इन लोगों ने भी आह्वान किया था और इन लोगों की वजह से हिंसा हुई है, गृह मंत्री द्वारा और सांसदों द्वारा। तो क्या दिल्ली पुलिस आज जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या वो जो कंक्लूजन हमारे नेताओं ने और जो रूलिंग पार्टी है पहले से लेकर आए थे, क्या उनको सही साबित करने के लिए एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो कुछ चार्जशीट जो फाइल हुई हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ जो बयान आए हैं, बहुत हास्यास्पद बात है कि उन्होंने भी एक क्रोनोलॉजी का जिक्र किया है और ये बताने की कोशिश करी है कि जो दंगों का षड्यंत्र है वो सीए विरोधी आंदोलन में ही पाया जाएगा, और सीए विरोधी आंदोलन की क्रोनोलॉजी है। बाकायदा चार्जशीट में ये बताया गया कि 13 मार्च, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर जामिया में हिंसा होती है, 16 दिसंबर शाहीन बाग आंदोलन शुरू होता है, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, उसके अगले एक हफ्ते बाद यहां आंदोलन शुरू होता है, उसके अगले महीने बाद इस यूनिवर्सिटी में आंदोलन शुरू होता है। इन लोगों ने सीए के खिलाफ आंदोलन किया। क्या ये हमारा आंदोलन कोई सीक्रेट आंदोलन था? हमारा आंदोलन बिल्कुल पब्लिक आंदोलन था, और आप उस पूरे आंदोलन को एक क्रोनोलॉजी के बतौर दिखा के और ये बोल के कि ये आंदोलन जिम्मेदार है जो दिल्ली में फरवरी में दंगे हुए, इस पे हम लोग सवाल खड़ा करना चाहते हैं। इस पे हम लोग दिल्ली पुलिस से सवाल खड़ा करना चाहते हैं। इस आंदोलन में वो कौन सी चीज है जिसने एक बार भी किसी को हिंसा की तरफ इंसाइट करने के लिए बोला गया हो? और अगर आप क्रोनोलॉजी की बात करते हैं इस दिसंबर से लेकर फरवरी तक की घटनाओं के बीच में, तो दिल्ली पुलिस से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि उस बीच और बहुत सारी घटनाएं हुई, और ऐसा क्यों है कि जब आप दिसंबर से लेकर फरवरी तक उन सारी घटनाओं को समराइज करते हैं तो कुछ घटनाएं गायब हो जाती हैं। मुझे याद है 20 दिसंबर का दिन था, दिल्ली में धारा 144 लगी हुई थी, मतलब 5 से अधिक लोग किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए गैदर नहीं हो सकते थे। उस 20 दिसंबर को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कनॉट प्लेस राजीव चौक पे कपिल मिश्रा और उनके साथी खुलेआम रैली निकालते हैं। जब हम कपिल मिश्रा की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग 23 फरवरी को जो उन्होंने भाषण दिया उसकी बात करते हैं, लेकिन ऐसे भाषण वो 2 महीने से दे रहे हैं। खुलेआम रैली निकालते हैं 20 दिसंबर को, बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो। हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं कि ये आपको नहीं लगता कि ये हिंसा भड़काने के जैसे भाषण है? क्या आपको ये जरूरी नहीं समझा कि धारा 144 का उल्लंघन किया हो, उन पे कोई मुकदमा किया जाए? आप इस बात को लेकर चुप क्यों हैं कि 2 बार जिन आंदोलन को आप बोल रहे हैं हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, 2 बार उन पे ऐसी घटनाएं हुई जहां उनके ऊपर गोलियां चलाई। 29 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया में गोली चली, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चली, और उसी के 2 दिन पहले 27 जनवरी को एक मंत्री ने खुलेआम बोला था गोली मारने के लिए, अनुराग ठाकुर ने। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और ये क्या बहुत ज्यादा है कि अगर हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि उस घटना का, जो 2 घटनाएं हुई 29 और 1 फरवरी को, 29 जनवरी को, और उससे 2 दिन पहले दिए गए बयान में कोई लिंक नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर के बयान से कोई प्रभावित हो सकता है? क्या ये एक्सपेक्ट करना कि आप इस एंगल को भी प्रोब करेंगे कि ये बहुत ज्यादा है एक्सपेक्ट करने के लिए? या फिर आप बताना चाहते हैं कि दिल्ली में 2 किस्म के कानून है? एक कानून है जो नेताओं के लिए, जो वीआईपी लोगों के लिए, जो सत्ता में बैठे, जो सत्ताधारी पक्ष है, उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है, जहां अगर आप कुछ भी कर दें आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और दूसरा सेट ऑफ रूल्स है जहां अगर आपने कुछ किया भी नहीं तो आपके खिलाफ एविडेंस मैन्युफैक्चर करके आपको फंसाने की कोशिश करी जाएगी। क्या दिल्ली पुलिस 2 रूल्स को फॉलो करती है? हिंसा के दौरान कई सारी घटनाएं आई, मैं एक बात बोल के खत्म करूंगा। कई सारी घटनाएं आई जहां हमने पब्लिकली देखा लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, मार दो काट दो, वो क्रोनोलॉजी में उनका कोई जिक्र नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ कोई आरोप भी दर्ज हुआ है या नहीं। ये बात तो स्पष्ट है कि उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक रागिनी तिवारी बोल के फेसबुक लाइव किया था उन्होंने मौजपुर से, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस को इस बात का जवाब देना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। और आज हम पे आरोप लगा के, ये उस दिनों जो घटना हुई
उसके इतिहास को हमारी आंखों के सामने 6 महीने के भीतर पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। हम लोग, मैं इतिहास का छात्र हूं, हमने पढ़ा कि इतिहास को बदला जाता है, इतिहास को तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, लेकिन आइडियली उस 200-300 साल पुराने इतिहास की बात करते हैं। हमारे सामने 6 महीने पहले जो घटनाएं हुई उसके इतिहास को बदला जा रहा है और उस पर ऑफिशियल मोहर लगाई जा रही है। उनकी कोशिश है ये सारे आरोप सीए आंदोलन में शामिल लोगों पे लगा के, कुछ लोगों को जेल में डाके, बाकी लोगों के ऊपर आरोप लगा के, किसी के खिलाफ मीडिया में कुछ इंफॉर्मेशन लीक करके वो हमको डिफेंसिव कर देंगे। हम बार बार यही साबित करने में लग जाएंगे और हम पूरे टाइम यही बोलते रहेंगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो असली घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं दिल्ली पुलिस से भी पूछना चाहता हूं, मोहन नर्सिंग होम के अंदर एक घटना सामने आई थी जहां एक अस्पताल की छत पे एक मॉब चढ़ गया था, बंदूक लेके, बम लेके, वहां बम जमीन पे फेंक रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। अभी जो आपने 3 चार्जशीट फाइल करी हैं, ऐसा क्यों है कि मोहन नर्सिंग होम के बारे में कोई जिक्र नहीं है? वो किसकी कॉन्स्पिरेसी थी? क्या आप बोलना चाहते हैं कि जो जामिया के आंदोलनकारी हैं वो मोहन नर्सिंग होम की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे? जो फैजान को मारा गया, पीटा गया, और वीडियो में है जहां पीट पीट के बोला जा रहा है कि तुम्हें आजादी चाहिए तो आजादी ले लो, फैजान की मौत हो गई, फैजान के 3 साथी और थे, उसकी कॉन्स्पिरेसी के जामिया और जेएनयू और बाकी शाहीन बाग के आंदोलनकारी कर रहे थे। एक 85 साल की महिला अकबरी, उसको जला दिया, जला के मार दिया, क्या उसकी कॉन्स्पिरेसी आंदोलनकारी कर रहे थे? आप असली कॉन्स्पिरेसी को छुपाना चाहते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जो कॉन्स्पिरेसी का कर रहा है ये खुद एक कॉन्स्पिरेसी है कि सरकार की जो है, पहले भी हमने देखा है दंगों के केस में इंसाफ नहीं हुआ है, 84 में नहीं हुआ, 2002 में, लेकिन जैसे कंवलप्रीत ने बोला बिल्कुल सही बात है, इस बार तो वो एक कदम आगे जा रहे हैं। जो लोग असलियत में जिम्मेदार हैं दंगा भड़काने के लिए, उनको तो बचाया जा रहा है। जो सरकार के आलोचक हैं ये एक मौका तलाशा जा रहा है कि साथ ही साथ उनकी आवाज को भी बंद कर दिया जाए। शुक्रिया उमर खालिद साहब। इसके पहले कि मैं योगेंद्र जी को बुलाऊं, मैं यहाँ जो प्रेस के मित्र इकट्ठा हैं उनको याद दिला देना चाहूँगा कि एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल ने रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनमें जो फरवरी में हिंसा हुई थी उसमें पुलिस की भागीदारी की पड़ताल की गई है बहुत ही बारीकी से, और वो रिपोर्ट जारी की गई है। उसके साथ ही पुलिस प्रोजेक्ट ने कई रिपोर्ट्स जारी की हैं जिसमें पुलिस प्रोजेक्ट ने ये प्रदर्शित किया, दिखलाया है कि किस प्रकार एविडेंस, सबूत गढ़े जा रहे हैं, फैब्रिकेट किए जा रहे हैं। तो पुलिस प्रोजेक्ट और एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा खुद आप लोगों ने, यानी इंडियन एक्सप्रेस, कारवां, क्विंट और बाकी तमाम ने बहुत सारे सबूत सामने ला के रखे हैं जिनसे यह पता चलता है कि इस हिंसा की जांच दरअसल किस तरफ होनी चाहिए थी, हो किधर रही है। हमें भीमा कोरेगांव के पूरे केस को याद रखना चाहिए जिसकी जांच एक दिशा में जा रही है, अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और पूरे देश में जाल फेंका जा रहा है। असली हिंसा जो भीमा कोरेगांव में हुई थी दलितों के खिलाफ, उस हिंसा में जो अभियुक्त थे वो बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई जांच नहीं हो रही है। उसकी जगह एक पूरा झूठा मामला खड़ा कर दिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। तो उस मॉडल को याद रखना चाहिए। इस जांच के नाम पर जो पूरा एक षड्यंत्र हो रहा है उसको याद रखना चाहिए। अंत में मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव को आमंत्रित करता हूँ। शुक्रिया पूर्वानंद जी। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां उमर खालिद ने अपनी बात करी। And I'll try and summarize it in English and Hindi so that there is no overlap of time. उमर खालिद ने सवाल पूछा था कि ये दिल्ली पुलिस किसी षड्यंत्र की जांच कर रही है या कि जांच अपने आप में षड्यंत्र है। Is the Delhi police inquiring into a conspiracy or is the investigation itself a conspiracy? That is the big question we are raising today. 1 मई को मैंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, यही कहते हुए, श्रीवास्तव जी तब तक कमिश्नर बन गए थे, मैंने यही कहते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि ये जिस तरह से चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये तो अपने आप में कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। और अब जबकि सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें कुछ पता लग गया, इतने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, हर रोज किसी ना किसी से पूछा जा रहा है, चीजें लीक की जा रही हैं, तो अब हम देख सकते हैं इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। 1984 में दिल्ली ने अपनी सड़कों पे एक बहुत
विभत्स दृश्य देखा, मैसेकर देखा। लेकिन इस बार एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। जैसा उमर ने कहा कि जो शिकार थे उनको आरोपी बनाया जा रहा है, ये तो 1984 में भी नहीं हुआ था। और जो आंदोलन उससे पहले देश ने जो सबसे शांति प्रिय लोकतांत्रिक आंदोलन देखे हैं अपने इतिहास में, इतनी महिलाएं जिस आंदोलन में आई, तिरंगा उठा के, संविधान को हाथ में लेके, अंबेडकर और गांधी की तस्वीर को लेके जनगण मन गाते हुए, उस आंदोलन को अब हिंसा का स्रोत बताया जा रहा है। मेरे साथियों ने जो बात कही वो सब मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं इस सब को सिंपली 11 क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके सामने रख देता हूं। We wish to ask these 11 questions to Delhi police. These are sharp questions. I'll say that in Hindi and English. On 25th of February, a statement was released by the Press Information Bureau after Home Minister Amit Shah chaired a meeting attended by Delhi CM Arvind Kejriwal and Delhi LG Anil Baichal. The statement said, ये 25 फरवरी का statement है, Shri Shah noted that the professional assessment is that the violence in capital has been spontaneous. Amit Shah ji ka statement. However, just a few days later, on 11th of March, the Home Minister contradicted his previous statement and stated in the Lok Sabha that riots were pre-planned conspiracy. He in fact named organizations and individuals there. This was even before any investigation had begun into the riots. Is the entire investigation just a facade to arrive at premeditated conclusions already announced before the investigation had even commenced? So, पहला सवाल, क्या इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सारे निष्कर्ष तय हो चुके थे, लोकसभा में घोषित किए जा चुके थे, उन्हीं होम मिनिस्टर द्वारा जिन्होंने खुद 25 फरवरी को कहा था कि नहीं तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो गया, और 11 मार्च को वो बताते हैं, और इसके बीच में जो कुछ हुआ उमर ने बताया, कंवलप्रीत ने बताया, 11 मार्च को उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं, बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी, और वो नाम बता देते हैं किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी। तब से आज तक क्या दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, क्या वो पहले से बनाए हुए कंक्लूजन को पुष्ट करने का प्रयास है? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, ये जो क्रोनोलॉजी बनाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस क्रोनोलॉजी में कुछ एलिमेंट मिसिंग क्यों है? ये उमर खालिद ने पूछा था। 27 जनवरी को माननीय अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने वो बयान दिया था, वो कहा था गोली मारो, जिससे कुछ बातें हुई थी, है ना, देश के गद्दारों को, ये सब बातें हुई थी उनके सामने। 27 जनवरी को वो ये कहते हैं, 29 जनवरी को जामिया मिलिया में गोली चलती है, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चलती है। हम नहीं जानते किसने चलाई है, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मिस क्यों हो जाता है क्रोनोलॉजी से? दूसरा सवाल। तीसरा, कपिल मिश्रा बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने सिर्फ 23 फरवरी को स्टेटमेंट नहीं दिया, दिसंबर से लेके फरवरी तक लगातार बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा उमर ने याद दिलाया कि उन्होंने रैली निकाली 20 दिसंबर के दिन, उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के दौरान कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और उन्होंने 23 फरवरी को फिर डीसीपी के सामने खड़ा होकर बोला कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इस सड़क को साफ करेंगे। सारे देश ने देखा, और आज दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, इसमें भड़काने की कोई बात नहीं। गजब है। सो कपिल मिश्रा, who's been active since December to February, even calling Delhi election a battle between India and Pakistan, and then threatening in front of the DCP that his supporters will take law into their own hands if the police does not clear the protesters. Does the Delhi police not consider these utterances as clearly an attempt to provoke violence and promote disaffection and divide between communities? कफील साहब को, डॉक्टर कफील को देश प्रेम की बात करने पे उनके खिलाफ केस हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और यहां खुल के कह रहे हैं, और पुलिस कोर्ट में आके कह देती नहीं साहब जांच कर ली, स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं है। जस्टिस मुरलीधरन ने उनको कहा था कि जरा कोर्ट के अंदर सुना दो, और आपको इसमें केस दिखाई नहीं देता। फोर्थ क्वेश्चन, वायलेंस के दौरान तमाम तरह के वीडियोस आए जो कि रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोगों को इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी दिखाता है, कम से कम उसका एक प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे सामने आता है।
वो क्या है? एक तो इन्होंने बोला था, उमर ने बोला ही था, रागिनी तिवारी नामक एक महिला के फेसबुक पे मौजपुर से स्टेटमेंट आता है जहां बिल्कुल खुल के कह रही है मरे, मारो या मर जाओ, इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रही है। रिपोर्ट्स इसके बारे में भी आएंगे। बीजेपी लीडर्स सत्यपाल सिंह, जगदीश प्रधान, नंद किशोर गुर्जर, मोहन सिंह बिष्ट, इनके बारे में बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है, वीडियो है, एविडेंस दिए गए हैं। इन सब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? सो the fourth question is, why is the Delhi police not taking cognizance of various videos, reports of persons associated with the ruling dispensation who were inciting and participating in violence and carnage? ये दंगों से पहले की बात नहीं है, ये बिल्कुल हिंसा के दौरान की बातें हैं। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पांचवा सवाल, as everyone knows, everyone in this country has seen that video of 4 brutally injured men who are being forced to chant national anthem and not out of love for the country, mocking at them. अच्छा तुम देश जनगण मन बोलते थे, बोलो दे जनगण मन इस वक्त. And one of them, 23-year-old Faizan, subsequently succumbed to injury. Why has the Delhi police not initiated any action against its personnel who were involved in the assault that led to the death of one person? दिल्ली पुलिस सबको पहचान लेती है, कहती है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग थे जो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अपने लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं वीडियो के अंदर। Why is that happening? Number 6, there is this case of complete evidence-based case of brutal custodial torture of Khalid Saifee. I'm personally someone who went to the jail, met Khalid Saifee, and he narrated what happened to him. वीडियो है जो दिखाता है कि पुलिस के सामने आराम से पैदल चलते हुए खालिद सैफी जा रहे हैं और उसके कुछ घंटों के बाद उनकी टांगें टूटी हुई हैं. Why is there no inquiry by anyone, police, National Human Rights Commission, judiciary? What is happening here? दिल्ली में सबके नाक के सामने कस्टोडियल वायलेंस हुआ, टॉर्चर हुआ, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? 7वां सवाल, has the police ordered any probe into several accounts where police allegedly was complicit in the violence, directing mobs, pelting stones, looking the other way, breaking CCTV camera? Are these charges being probed fairly? कितने वीडियोस आए थे कि पुलिस दंगे में शामिल है, खुद पत्थर फेंक रही है, हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ देख रही है, सीसीटीवी कैमरे पुलिस खुद तोड़वा रही है. इनके बारे में जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हुई है अब तक जांच? क्या किया है दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में? 8वां सवाल, ये यूएपीए का इस्तेमाल क्यों किया गया है? People were first initially arrested under various FIRs, but then UAPA has been imposed on many of them. Is this a ploy to keep protesters in jail for long period without the need to provide evidence or frame charges? Why is the draconian anti-terror like UAPA being used? UAPA का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है इस केस के अंदर? क्या पुलिस को पहले दिन से पता था कि टेरर है, यहाँ पे टेररिज्म हुआ है, या कि यूएपीए का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि अगर पुलिस कुछ भी प्रूव ना कर पाए तब भी यूएपीए की शील्ड लेके लोगों को बंद करके रख सके, बेल ना मिले, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसके बारे में कुछ पुलिस को प्रूव ना करना पड़े, कोर्ट के सामने कुछ कहना ही ना पड़े? 9th question, that there have been several reports. Khalid ने तो एक स्टेटमेंट दिया है 2 दिन पहले. There have been reports of people police has been coercing people it has summoned for questioning to give false statements. Is this a desperate attempt by police to buttress its conspiracy theory in the absence of any real credible evidence? तमाम तरह की रिपोर्ट्स पिछले कई हफ्तों से आ रहे हैं. जो लोग पुलिस जिनकी इन्वेस्टिगेशन करती है उनको बहलाती है, फुसलाती है, धमकाती है, उनके स्टेटमेंट में शब्द डाले जाते हैं, उनको डराया जाता है, 20-20 साल तक रहोगे, केस सॉल्व नहीं होगा, कैरियर खत्म हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सोच लो. क्या ये तरीका है पुलिस का काम करने का? पुलिस सच ढूंढ रही है या कि पहले से बने हुए एविडेंस दिखा रही है? 10वां सवाल, एंड आई एम अबाउट टू एंड. कन्फेशंस पुलिस के सामने जो किए जा रहे हैं, अब हर कोई जानता है कन्फेशंस हैव एब्सोल्युटली नो लीगल सैंक्टिटी. पुलिस की प्रेजेंस में कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे मीडिया को रिलीज किया जाता है.
तमाम तरह की ऊटपटांग चीजें मीडिया के सामने दी जाती हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद के बारे में सारा देश जानता है, प्रोफेसर अपूर्वानंद के क्या सिद्धांत हैं, क्या उनकी बात है, किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं। उनके बारे में किस तरह की ऊटपटांग चीजें लीक करके मीडिया के अंदर चलवाई गई। सो why is the police trying to prejudice public opinion against those arrested even before it has officially framed any charges based on these confessional statements? इन कई confessional statements के नीचे होता है कि refuse to sign, उसको दिया जा रहा है, उसके बेसिस पर खबरें चलवाई जा रही हैं। ये क्या है? ये तो पब्लिक ट्रायल है। कोर्ट में ट्रायल करने से कौन डरता है, मगर पब्लिक में ट्रायल झूठी खबरें फैला के ये क्यों किया जा रहा है? एंड माय लास्ट क्वेश्चन, in its latest line of questioning, Delhi police has been grilling people on their conversation about their conversations in some WhatsApp group with hundreds of members. Isn't it ridiculous to believe that these riots of this scale were conspired for several weeks in a WhatsApp group with hundreds of people and the police never got to know about it? Or is the police pursuing this line of argument in order to safeguard real culprits? जो भी जाता है उनसे कहा जाता है आप फला फला व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर 50, 60, 70 लोग थे, कभी 100 लोग हो गए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हफ्तों तक वो व्हाट्सएप ग्रुप है। दिल्ली के दंगों की प्लानिंग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकती है जिसका पुलिस को पता ही ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ जो प्रेस के साथी मौजूद हैं, कि हम ये मानते हैं कि पुलिस एक पेशेवर संस्था है, एक प्रोफेशनल फोर्स है। उसका आइडियोलॉजिकल विचारधारात्मक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी विचारधारा के लिए और किसी भी विचारधारात्मक उद्देश्य के लिए। उस पुलिस में जनता का विश्वास बना रहना चाहिए और इसलिए उसे पेशेवर ढंग से काम, प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए।